स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 1 minute. Footprints without feet. Most important questions which is coming in a term 2 exam, and the best part is it's a one-shot video. You do not have to find for part 1, part 2. It is only one short video, and the questions will be fully explained by whom? By Anshu Kumar, your teacher only. So we will also do the first flight part also, but first we have to do footprints without feet. Okay, let's get started. First question is, how did Ibrahim's mother help him to become a scientist? How? How can her mother help her to become a scientist? Of course, उसको प्यार की होगी, उसके जो भी मदद में आया होगा वो उसे ला के दी होगी. So the answer is Ibrahim's mother was a source of inspiration to him. Of course, हम लोग को ये बात पता है कि इब्राहिम के अगल बगल घर में कोई भी नहीं रहता था, ताकि वो थोड़े दूर पे रहता था शहर से. तो फिर उसकी मम्मी थी जो उसके लिए इंस्पिरेशन थी. सी ऑलवेज इनकरेज्ड एंड इंस्पायर्ड हिम. ऑफ कोर्स सी प्रोवाइडेड द मच नीडेड कंपनी टू हिम. ऑफ कोर्स कंपनी उसकी मम्मी थी, बिकॉज एट अ वेरी वेरी यंग एज उसकी फादर की डेथ हो गई थी. She brought him books, wow, telescopes, microscopes, cameras and mounting material. और हमारी माँ बाप रे मेले से एक जलेबी ला दे और बोले यही खाओ. Move to next question. Question number 2 is mention any two Ibrahim's contribution to the world of science. मतलब कि world of science मतलब कि ये हो गया ना कि पूरे दुनिया भर में जो साइंस है उसमें इब्राइट्स की कौन से 2 कंट्रीब्यूशन है. फर्स्टली इब्राइट्स वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. द फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन प्रोवाइडेड एन आंसर टू द बायोलॉजिकल पजल. मतलब जितना भी यहाँ पेज टिप्पणी हुई है इसका सिंपल सा चीज़ है, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. मतलब जो सेल होता है वो अपना ही डीएनए कैसे रीड करता है. और दूसरी बात, secondly, Ibrahim discovered an unknown insect hormone which leads to its new theory on the life of cell. मतलब उसने एक हार्मोन इंसेक्ट का हार्मोन फाइंड किया जो कहते हैं सेल ऑफ थ्योरी में बहुत ही काम आया. The question number 3 is, what lesson does Ibrahim learn when he does not win anything at science fair? Oh my god, अभी तक आप सोच रहे हो कि Ibrahim was very very intelligent fair child, but ऐसा होता है कि कोई को अपना पहला स्टेज में नहीं जीत पाता है, and it is good thing. अगर आप हारोगे तभी तो जीतने की अहमियत सीखोगे. तो the answer is Ibrahim learned a lesson that real experiments and not simply a neat display of things can win him a prize in a competition. जब इब्राइट वहाँ गए थे तो फिर उन्होंने बस माइक्रोस्कोप से सिंपली नीट डिस्प्ले दिखा दिया था, बट वो उनको कुछ भी नहीं जिता सकता था, बिकॉज उन्होंने देखा था जितने भी उनके कॉम्पिटिटर थे उन्होंने सब ने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कहीं ना कहीं जीता भी होगा. तो तब उन्हें ये देख के समझ आया. क्वेश्चन इज, what was Ibrahim's limitation in being brought up at Reading in Pennsylvania? So Reading is a place in Pennsylvania. But there was one thing I could do, collect things. It is a statement. From here to here. What collection did Ibrahim make? Oh, sorry, here will be B. What did he start making collection? मतलब कि उसने क्या क्या collection किए जब वो पेंसिल्वेनिया में रहता था. So the answer is Ibrahim was brought up in a small place which was close to Reading in the state of Pennsylvania. Of course, it is given in question. It was a lonely place. वो मतलब कि lonely मतलब कि बहुत ही शांत प्लेस है, वहाँ ज़्यादा कोई रहते नहीं थे. Ibrahim has no companion or friend with whom he could play football or
baseball. Of course, playing football, baseball lived it. But even though playing badminton, you should have two players. But he haven't have any companion or friend. There was only one thing he could do. बस वो एक ही चीज़ कर सकता था, collect things. वो चीज़ें collect कर सकता था. Therefore, he began to collect butterflies, rock, fossil, and coin when he was in kindergarten. Oh my God! And first thing, let me say, it is come in CBSE 2008. किंडरगार्टन में ये क्या है कलेक्ट कर रहा था. हमारी माँ है तो लेट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which people in the 8th grade which project in the 8th grade finally won a bright an award. मतलब कि जो 8th स्टैंडर्ड में था, कौन सा प्रोजेक्ट उसने किया था जो उसे मतलब कि एक अवार्ड दिला दिया. In his 8th grade, Ebright experimented to find the cause of a viral disease that kill all monarch butterfly, even fewer. मतलब कि एक टॉपिक था कि कौन सी वायरल डिजीज़ है जो हर साल बहुत सारे मोनार्च बटरफ्लाई, एक टाइप का बटरफ्लाई होता है मोनार्च, उसे किल कर देता था. He thought beetles might be carriers of disease. Hence he tried raising a caterpillar in the presence of beetle. मतलब मुझसे लगा कि जो beetles होते हैं उनमें कोई डिजीज़ होगा, तो फिर उसने ये एक्सपेरिमेंट करते हुए कैटरपिलर, मतलब कि आपको प्रोसेस तो पता होगा कैसे बटरफ्लाई बनती है, तो उसी के जब वो कैटरपिलर स्टेज में रहती है तो बेटल के प्रेजेंस में उसे इब्राइट्स ने उसे बड़ा करा. Thought he did not get any answer. This award won him. मतलब जब उसने दिलो जान लगा दी और मतलब कि रिजल्ट कुछ नहीं निकला और इस थ्योरी को उसने गलत कर दिया तो इससे प्राइज मिला. कोर्स मिलेगा ही. क्वेश्चन नंबर 6. Why is the lawyer sent to New Milan? What does he first think about this place? मतलब जो लॉयर था उसे न्यू मिलान क्यों भेजा गया था? इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज what does he first think about this place? मतलब उससे पहले इस प्लेस के बारे में क्या लग रहा था. The should be lawyer. The lawyer is sent to New Milan in the order to serve someone on Oliver Lutkins. So Oliver Lutkins a person जिसको लॉयर की तरफ से मतलब कि कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया था लॉयर के हाथों. तो समन होता है इट इज़ मतलब कि वो कोर्ट से आता है कि आपको एक विटनेस की तरह एक केस में बुलाया गया है तो आप आइए. ही इज़ एक्साइटेड टू गो न्यू मिलान. ऑफ कोर्स ही वाज. He thinks that it may be a fine place, but he finds it muddy and dirty. Of course, उसने सोचा कि बहुत ही अच्छा प्लेस होगा, बट वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही डर्टी था, पूरा कीचड़ था वहाँ पे. And of course, friend, I know I haven't have that much subscriber, but please subscribe my channel, like my videos. It give me encourages and it encourages me that I should make more and more videos. Please, friends, please. For what? So question number 7 is, for what unusual reason Bholi was sent to school? Bholi is sent to Bholi is sent to school for unusual reason. Bholi's mother thinks that if girl go to school. अच्छा, पहले ये आंसर छोड़ दीजिए. जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन भोली वाज सेंट टू स्कूल, मतलब कि आपने तो क्वेश्चन पढ़ा ही है, आपको आपने चैप्टर तो पढ़ाएंगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा होगा कि हाँ ये कहते हैं हम उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो लड़की, कोई भी लड़की स्कूल जाए, और फिर उसकी माँ ने सोचा कि उसके टीचर सब उसकी जिम्मेदारी ले, ऐसे से कुछ थोड़ा आ रहा होगा. तो वही हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स आएंगे तो आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टूड. आप खुद से भी ट्राई कीजिए. भोली सेंट टू स्कूल फॉर अनयूजुअल रीज़न. ऑफ कोर्स आप ऐसा ही मत लिख दीजिएगा कि या भोली सेंट टू स्कूल बिकॉज. आप एक
स्टेटमेंट लिखिएगा आगे, उसके बाद आप अपना मतलब जो कहानी उसे लिखिएगा, वो अच्छा लगता है, अच्छा फॉर्म ऑफ राइटिंग है उसे कहते हैं. भोली's mother thinks if girls go to school nobody will marry them. of course ये पुराने ज़माने की इंसान की ये सोच थी ही. She agrees to send Bholi to school because there is no chance for her getting married even otherwise. We all know that Bholi was a backward child, so ऐसे भी उसकी शादी नहीं हो पाती, और पढ़ लेगी तो वैसे भी उसकी शादी नहीं हो पाएगी. मैं दोनों केसेस में इट्स नो फॉर हर मैरिज. बट आप कितने खुशकिस्मत हो, या इवन हम लोग कितने खुशकिस्मत है कि अभी हम लोग स्कूल जाने मिल रहा है. इवन दो आई एम खुशकिस्मत है कि स्कूल जाने मिल रहा है. बट भोली के समय पे इट्स वाज डिसएग्री फॉर ऑल ऑफ देम. देयरफॉर शी वांट्स, मतलब उसकी मॉम चाहती थी उसकी टीचर ही अकेले उसके बारे में चिंता करें. The next question is question number 8. How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? And this question is very VVI question, because it always repeatedly come in your board exams, and it can come also this time also. So, Bholi's teacher changed the direction of Bholi's life through her love and affection. Of course, she loved that much Bholi that Bholi never been loved like that. She filled her mind with hope and faith. Of course, उसने भोली को बोला कि जितने भी मन में तुम्हारा डर है सब कुछ को बाहर फेंको और अपने मन में होप एंड फेथ भरो. It was because of her guidance that Bholi developed her personality. Of course, Bholi, even a person carries her own personality. So Bholi developed her own personality. Now she could face all the problems of life with great courage and confidence. और यही जो उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई थी, जो उसके मन में होप एंड फेथ था, उसी के बलबूते पे ही कुड फेस all the problems of his life with a great courage and confidence. He having all the confidence he have to. Question number 9. How did Bholi at first agree to an unequal match? It is the first question. The second question is how did she later reject the marriage? And question is how does this tell about her? मतलब कि पहले वो एक अजीब से इंसान के साथ शादी करने की तैयार थी. So first thing is Bholi knew that her bridegroom was much older and lamb पसंद, मतलब कि older मतलब बहुत ही उम्र का है, and lamb मतलब कि जो इंसान होता है जो ढंग से चल नहीं पाते. इनफैक्ट आपने अपने घर ही में देखा हो, जो आपकी दादा दादी है जो बहुत उम्रदार है, तो वो थोड़े झुक के चलते हैं, या फिर उनका एक पैर काम नहीं करता है ढंग से. ऑफ कोर्स आपने देखा, घर में नहीं तो अगल बगल ही देखा ही होगा. She agreed to his unequal match for the sake of his father honor. Of course, उसके पापा की इज्जत के लिए ही उसने हाँ की होगी, because जब वो स्कूल स्टेज में थी तभी वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी. इवन तो वो इन सब को इनकार कर सकती थी, बट ऑफ कोर्स उसके पापा को उसका मान रखना था, इसलिए उसने हाँ कर दिया. But later she refused to marry Bishamber. Of course, the bridegroom name was Bishamber, because he demanded a huge dowry from her father. Dowry का मतलब होता है दहेज. बिकॉज मतलब कि बाद में, पहले तो उसने कुछ नहीं कहा कि हाँ मैं नहीं मांगूंगा, बट बाद में उसने बहुत ही पैसे मांगे उसके पापा से. शी रियलाइज दैट ब्राइडग्रूम वाज अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल पर्सन. मतलब कि कंटेम्पिटेबल का मतलब होता है, 1 मिनट, कंटेम्पिटेबल का मतलब होता है तुच्छ इंसान, नीच इंसान. आपने सुना है ये तो बहुत तुच्चा इंसान है, ये बहुत नीच इंसान है, जस्ट लाइक दैट. ग्रीडी मतलब होता है कि लालची इंसान होता है ना, वही. Therefore, she put down her foot and said no to this marriage. Of course, she have to put down her feet and said no to this marriage, because बहुत कुछ हो सकता था. The next question is
question number 10 is how did one minute. How did the hack driver tell the narrator about Lutkins? मतलब जो हैक ड्राइवर जो कि खुद ही लुटकिंस था उसने नरेटर को क्या क्या बताया था लुटकिंस के बारे में. ऑफ कोर्स अब आप सोचिए कि आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि क्या क्या उसने किस किस शॉप में लेके गया था, वो उससे पहले उसने क्या क्या बताया था कि कैसा इंसान है वो. तो वही सब रियलाइज़ कीजिए. ऑफकोर्स आपको इस आंसर मिलेगा. ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The hack driver, who was Lutkins himself, it is written, carefully befoarded the narrator. Of course, उसे fooled मतलब कि बहुत ही धोखे में उसने पता नहीं चल दिया कि वही लुटकिंस है जो हैक ड्राइवर है. He told him many things about Lutkins. He said that Lutkin was a hard fellow to catch. Of course, वो एक ऐसा इंसान है जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है. He never pay back money. वो कभी भी किसी से पैसे लेता था तो फिर कभी भी उसको मतलब कि रिटर्न नहीं करता था. He played pokers and brought money. Poker is a type of game which I also don't know. वो वहाँ से money लेता था. The hack driver further told him that Lutkins could be found either at Fritz or गस्टव शॉप. मतलब ये दोनों एक शॉप का नाम है, उसमें ही लुटकिन शायद मिलेगा आपको. तो फिर यही हुआ था बात. उसके बाद वो लोग फिट्स के शॉप में जाते हैं, फिर वो उन्हें पता चलता है कि वो गस्टव के शॉप में है. ऐसे ऐसे करके कि आप आगे भी लिख सकते हैं अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया. बिकॉज इस टाइम आपका पूरा पैटर्न ही मतलब कि 40 मार्क्स का हो रहा है. तो फिर जब लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में आएगा तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स ऐसे लिख सकते हैं. 1 minute. Question number 11 is what was the lawyer's first impression to Lutkins? Was it correct? मतलब कि जो पहला इम्प्रेशन था लॉयर का लुटकिंस की तरफ, क्या वो सही था? The lawyer first 1 minute, let me change the color. What should okay, red. The lawyer's first impression of Lutkin was different. Of course, we all know that. Found Lutkin cheerful, red-faced, and quite amiable. उसने ऐसा सोचा था कि वो उसने देखा. He offered him to lawyer in finding Lutkin's थ्रू ही हिमसेल्फ फर्स्ट लुटकिन. मतलब कि जब वो पहले मिला था तो कितना अच्छा वो इंसान था और उसने ये भी ऑफर किया था कि जो लुटकिन वो खुद है उससे वो ढूंढने मदद करेगा. बट लेटर ऑन द लॉयर फाउंड हिम द डिफरेंट पर्सन. आती है स्टोरी में चेंज. सो लॉयर वॉज नॉट करेक्ट इन हिज असेसमेंट. ऑफकोर्स ही वॉज नॉट करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 minute. Let me change. 1 minute. So the next question is how did Lutkin's mother receive the narrator? मतलब कि जो लुटकिन की वजह से कैसा मतलब कि पहला इम्प्रेशन था. When Lutkins took the narrator his mother. अभी यहाँ पे बात हो रहा है हैक ड्राइवर नहीं, अभी लुटकिंस के ही तरफ से बात है. ऑफकोर्स पता था जो हैक ड्राइवर वो लुटकिंस ही खुद ही, बट लुटकिंस अभी खुद ही मतलब कि खुद ही उभर के आएगा. ऑफकोर्स आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में ये लिखा हाउ डिड लुटकिंस मदर रिसीव द नरेटर. शी कम आउट ऑफ हिज किचन विथ एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड स्टॉप. मतलब कि वो आयरन होता है ना पुराने ज़माने में, तो फिर उसी को वो लेके आई. शी मास्टर्ड ऑन द नरेटर साउटेड एज इफ टू अटैक हिम. मतलब कि वो ऐसे मतलब कि चिल्लाए उसके ऊपर कि लगा क्या कि वो एकदम कहते उसे मारेगी ही. दिस फ्रिक्टेड एंड नरेटर हु एट वंस रिट्रेड इन द फेयर. मतलब कि उसे बहुत डर लग गया था जो नरेटर था बिकॉज ऐसा रूप तो उसने सोचा भी नहीं था जो जैसा रूप उसे देखने को मिल रहा था. 1 minute. The question number 13 is, and please subscribe to my video, please like to my channel, please share it as much you can.
Why did Matilda avoid her rich friend from school? We know that Matilda's rich friend was very cool-hearted and soft-hearted. She never gave. वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि ये गरीब है, मैं से क्यों बात करूँ, मैं से क्यों दोस्ती करूँ. But Matilda himself only, he was like, no, I can't meet her. I have to avoid the rich friend. So answer is Matilda was married to a petty clerk, forced to live simple life against her dreams and wishes. We all know that कि मटिल्डा कैसे कैसे ड्रीम्स थे, कि वो कैसे कैसे रहना चाहती थी. मटिल्डा जैसी होती है स्थिति वैसी ही रहना चाहिए, नहीं तो बाद में पता ही है क्या हुआ था. She was unhappy and suffered illness as she felt she deserved better. मतलब उसे अभी भी लगता था कि वो डिजर्व करती है बेटर. आई डोंट थिंक कि जितना उसको अच्छा पति था उससे अच्छा पति हो सकता है. But she always feel like because she was so pretty, वो बहुत सुंदर थी, तभी उसको लगता था. She avoided meeting her rich friend from school as meeting her Matilda all the more unhappy and disappointed. तो उसे ये लगता था, इसीलिए वो मतलब कि अपने रिच फ्रेंड को अवॉइड करती थी, उससे नहीं मिलती थी, क्योंकि उसे ये लगता था कि अगर मैं उससे मिलूँगी तो फिर मुझे और अनहैप्पी हो जाएगी वो, और डिसअपॉइंटेड हो जाएगी वो. क्वेश्चन नंबर 14 इज लव इज अ स्टेटमेंट. लव एंड इनकरेजमेंट मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल. मतलब जो लव और इनकरेजमेंट है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर पाता है. प्रूव द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी बोली. मतलब कि ऑफकोर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मतलब कि इस पूरे चैप्टर में भोली कैसे, मतलब कि भोली का कैसे बर्ताव चेंज हुआ, भोली कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट लाई, उस वही मतलब मेन टॉपिक हो जाता है इस पूरे चैप्टर में. सो द आंसर इज one minute. So the answer is the impossible can made possible through willpower, constant hard work. Of course, we all know that. If our willpower is backed by somebody's love, encouragement, anything can be achieved. मतलब कि हमारे पास विल पावर है और किसी का प्यार साथ में इंकरेजमेंट, किसी का हौसला साथ में, किसी का भरोसा है, तब और भी मतलब कि जागरूकता बढ़ जाती कि मुझे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही है. दिस इज क्वाइट एविडेंट इन दिस स्टोरी. वी ऑल नो दैट Bholi get a new identity, personality because of the sincere effort of his teacher. Of course, only her teacher saw the effort to changing the mindset of Bholi. There was a time when Bholi could not even speak on his own name. हाँ, एक टाइम था जब वो अपना खुद ही नाम नहीं बोल पाती, जिसको नाम है भोली वही नहीं वो खुद बोल पाती थी. She used to stammer because of her lack of confidence. वो मतलब कि तुतलाती थी, वो बीच में से घबरा जाती थी, पूरा नाम बोल ही नहीं पाती, एक ही वर्ड को रिपीट कर से BH को रिपीट करती थी, HHH ऐसे करती थी. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोर्स उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था. She told Bholi to stand up for her right and live a respective life in spite of weak point. मतलब जीना ही क्या है, एक रिस्पेक्टिव लाइफ जियो. ऑफकोर्स इन स्पाइट ऑफ वीक पॉइंट. ऑफकोर्स भोली का एक वीक पॉइंट था, तो उसे हटाओ और अपना राइट्स को जियो. इट वॉज दिस कॉन्फिडेंस विच मेड भोली रिजेक्ट अ मीन ग्रेडिक कंटेम्पेबल मैन लाइक बिसम्बर हु वांटेड अ डॉरी फॉर हर मैरिज फॉर मैरिंग हर. मतलब और यही कॉन्फिडेंस जिसकी मैम दिलाई थी, उसी कारण भोली एक नीच और तुच्छ इंसान, जो कि बहुत लालची इंसान को ना कर दी थी शादी के लिए, जो दहेज मांगा था उससे शादी करने के लिए. ऑफ कोर्स The question number 15 is what would happen to Matilda if she had confessed her friend that she lost the necklace. क्या हो जाता है कि वो पहले अपने फ्रेंड को बोल देती कि हाँ यार बहुत ही बड़ी गलती हो कि मैंने तुम्हारा जो नेकलेस जो तुमने दिया था वो मैंने कहीं का ना कहीं गुम कर दिया है.
सो द सिंपली आंसर इज ऑफ कोर्स उसकी फ्रेंड इतनी हार्ट ये सॉफ्ट हार्टेड थी कि वो मना ही कर दी थी उस वो मतलब कि जो कितना कम दाम था ये कहते हैं पैसे का, तो वो भी उससे नहीं लेती, बट क्या कर सकते हैं। तो यही जो मोरल स्टोरी है वही बता रहा है कि ऑफकोर्स यू हैव टू, जो भी आपके दिल में वो कन्फेस कर देते तो क्या क्या पता ये फॉर्चून आप ही के मतलब कि आप ही के फेवर में हो जाए। The answer is a simple confession to her friend could save Matilda. Of course, it could save Matilda. Her rich friend Mimi Forrester would have ignored her loss by hiding the truth. Matilda had to undergo a lot of suffering. She lost her youth and vitality prematurely. All the happiness of the Loisel was lost due to the tragic magic. अच्छा ट्रेजिक मिस्टेक, मतलब जो मिस्टेक हुई थे जिस कारण उसने नहीं बताया था उसके कारण मतलब कि जो भी अभी तो उनकी शादी हुई थी, देवर ना मतलब कि ग्रोइंग एज में थे, तो वो मतलब कि अपनी उम्र नहीं खोते और अभी कितने अच्छे से रहते हैं। Of course, hiding the truth, Matilda has undergone a lot of suffering. Of course, she had to go a lot of suffering. Next and last question is, one minute. Why did Matilda means Mimi Loisel leave the hall in a hurry? मतलब कि वो इतनी जल्दी क्यों भाग गई थी? Of course, it is coming in CBSE 2018. And the next question is, what does it show about her character? तो Matilda left the hall in a hurry because she did not want to see this woman in a modest wrap. मतलब कि उसके पति ने मतलब एक तो नया कपड़ा खरीद ली थी, नया नेकलेस भी था, बट जो मतलब कि क्या हम लोग बोलते हैं उसके सॉल, हाँ जो सॉल था वो उसके पुराने वाला ही था, तो वो नहीं चाहती थी कि जितनी भी औरतें वो उसे देखें पुराने सॉल में, which her husband had tried to put around her shoulder. It shows that she did not want her good impression on other to be spoiled. मतलब कि जो उसके पति ने उसके उचारे और लपेट दिया था, तो वो नहीं चाहती थी कि जो गुड इम्प्रेशन बना है वो खराब हो जाए। इनफैक्ट आपको इसका PDF चाहिए, of course it is given in the description box, and please and it is only the last question, so please if you can, so please subscribe to my channel, like the video, share the video, comment, please. Okay, bye students.